میں ہوں پارس مسرور اور حاضر ہوں نئی کہانیوں کے ساتھ، کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے شبیر تو دیکھے گا۔ یہ محمد اسلم ہیں جو بستر پر پڑے ہیں، اپنے کنبے کے واحد کفیل۔ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے کہ یہ معذوری کی سطح تک پہنچ گئے، آپ بھی جان لیجیے۔ شبیر کو پتا چلا کہ محمد اسلم انتہائی محنت کش انسان تھے، تندور پر روٹیاں لگایا کرتے تھے۔ ایک دن ان کی ریڑھ کی ہڈی میں ایسا درد اٹھا کہ وہ روٹیاں پکانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ کسی نیم حکیم نے ان کا آپریشن بھی کر دیا، جس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئے۔ یہ 11-12 افراد پر مشتمل کنبہ کیسے گزر بسر کرتا ہوگا، یہ سوچ کر ہی روح کانپ جاتی ہے۔ علاج معالجے کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ شبیر کا کہنا ہے کہ کوئی ہے جو اس دکھ کو محسوس کر سکے اور اس خاندان کی مدد کر سکے۔ میرے 6 آپریشن ہو چکے ہیں، میرے پاس جتنے پیسے وہ سارے لگا دیے ہیں، کہہ نہیں سکتا۔ میرے گھر میں بھوک کی پکڑ میں ہوئی پڑی ہیں، کوئی پتہ نہیں میری بچی روزے کو رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی۔ ماہ رمضان میں ہم نے روزے رکھے تھے، پچھلے سال رکھے تھے۔ آپ کے ابو ہمارے 4 بھائی پہلے ہماری آپ لوگوں سے گزارش ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ان ہماری امداد کریں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ جو کچھ ہم نے لگا چکے بس۔ اور دنیا میں کچھ ایسے بلند حوصلہ لوگ ہی ہیں جن کا کوئی مجبوری بھی راستہ نہیں روک سکتی۔ پیر محل کی رہنے والی 17 سالہ عائشہ ایسی ہی باہمت لڑکی ہے جس نے پیدائشی معذوری کے باوجود خواب دیکھنا ترک نہیں کی۔ کہانی یہ ہے کہ عائشہ اب تو 17 برس کی ہو گئی ہے، لیکن وہ پیدائشی معذور تھی۔ بڑا بھائی جو خود ایک محنت کش ہے، اپنی بہن کے خوابوں کو پورا کرنا چاہتا تھا، اور وہ خواب کیا تھا؟ یہی کہ غریبوں کی خدمت کی جائے، یعنی خود بھی غربت اور دوسرے غریبوں کی خدمت کا جذبہ۔ بھائی نے رات دن محنت کر کے اپنی بہن کے نام سے ایک فاؤنڈیشن قائم کر دی اور اس کے تحت مقامی اسپتال میں مریضوں کو مفت کھانا دیا جانے لگا۔ یہ ہے وہ مناسب۔ اور یہ ہے وہ باہمت لڑکی اور انسانیت کا درد رکھنے والی عائشہ۔ ہمارے عائشہ فاؤنڈیشن کی طرف سے مریضوں کو کھانا دیا جاتا ہے 2 ٹائم۔ یہ بہت اچھا انتظام کیا ان لوگوں نے اور دینا بھی چاہیے۔ میں خود معذور ہوں، اس کو میں نے کبھی اپنی کمزوری نہیں سمجھا۔ فاؤنڈیشن میں مریضوں کو کھانا تقسیم کر رہے ہیں، میری طرف سے گزارش ہے آپ تعاون کریں۔ یہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا کہ طوفان کے اندر بھی طوفان ہی ہوتا ہے، ہر طرف خوف و ہراس کی لہریں پھیل جاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں پاکستان اور ہندوستان میں سمندری طوفان بپر جوائے کا خاصا چرچا تھا، جو کئی دنوں تک چلتا رہا۔ پھر یہ طوفان ابھی بے پناہ تباہ کاریوں کے بعد چلتا بنا، لیکن ایک اور طوفان کو چھوڑ گیا۔ بھارتی علاقے گجرات میں ایک ماہ کی نومولود بچی کا نام سوچا جا رہا تھا کہ اتنے میں طوفان بپر جوائے آ گیا۔ ماں باپ نے پھٹ سے بیٹی کا نام بپر جوائے رکھ دیا اور شبیر کو غالب کا وہ مصرع یاد آ گیا، کس کے گھر جائے گا طوفان بلا میرے میں۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ لوگوں کو عجیب عجیب شوق ہوتے ہیں جنہیں وہ پورا کر کے ہی رہتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، ایک امریکی خاتون نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کر ڈالی کہ کوئی صحیح دماغ شخص تو ان کو سراہنے سے رہا۔ اپنے جسم پر گویا انہوں نے پلاسٹک سرجری کا اسپتال ہی کھول لیا ہے۔ جب دیکھو کسی نہ کسی اعضاء میں رد و بدل، اور جناب موصوفہ نے حد یہ کر دی، اپنی زبان کو بھی نہیں بخشا، اسے بھی 2 شاخہ کروا لیا۔ دیکھنا پڑے گا کہ موصوفہ کا تعلق کہیں ریپٹائل فیملی سے تو نہیں ہے۔
कोई शब्बीर से पूछे तो वो आज भी यही कहेगा कि सिंफ नाजुक को अंडर एस्टिमेट न किया जाए। बेपनाह सलाहियतों की मालिक होती हैं और जिंदगी के हर शोबे में नाम भी पैदा करती हैं। केपीके से ताल्लुक रखने वाली एसएसपी सोनिया शिमरोज खान को भी पाकिस्तान की ऐसी ही काबिल फख्र खातून में शुमार किया जा सकता है जिन्हें उनकी बेहतरीन खिदमात पर पुलिस ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। ये एक इंटरनेशनल अवार्ड है। इस तरह वो ये अवार्ड लेने वाली पहली एशियाई और दूसरी मुसलमान खातून कहलाएंगी। मक्खी पर मक्खी मारने वालों में ये खबर बहुत दिलचस्पी से सुनी जाएगी कि मुर्दा मक्खियों को देखने वाली मक्खियों की उम्रें कम हो जाती हैं। और ये बात किसी लल्लू पंजू ने नहीं कही, बल्कि साहिब बाकायदा मुहक्किकीन ने कही है। और ये वो माहिरीन हैं जो अमरीकी रियासत मिशिगन में पाए जाते हैं। मगर ये खबर इतनी भी गैर अहम नहीं, क्योंकि माहिरीन को तवक्को है कि फ्रूट फ्लाइज में जो न्यूरॉन्स दरियाफ्त किए गए हैं वो इंसानी उम्र के बढ़ने की तहकीक में भी मौसर साबित हो सकते हैं। वैसे मक्खी पे मक्खी मारने का भी फायदा ही होता है। कोई काम की बात निकल ही आई है, क्या समझे। आप किसी बच्चे से भी पूछें तो कहेगा कि मुर्गी का हो या किसी और का, अंडा होता ही बेज़वी है। मगर जनाब इसका क्या करें कि ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में एक गोल मटोल अंडा भी पैदा हो चुका है। अपनी गोलाई की वजह से अंडे की कीमत हजारों डॉलर तक जा सकती है। माहिरीन बताते हैं कि ये अंडा अपनी कीमत लगने के इंतजार में है। वैसे इस तरह का गोल अंडा कुछ अर्सा कबल $1400 में फरोख्त हो चुका है। जब ये तहकीक कर रहा है कि कहीं ये वो अंडा तो नहीं जो मास्टर साहिबान नालायक तालिब इल्मों को इम्तिहानात में देते हैं। यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी एप्लीकेशंस देखी हैं जो लोगों को आसान शराइत पर फौरी कर्ज देने का दावा करती हैं। और अगर कोई जरूरतमंद 10-15 हजार का लोन ले ले तो हफ्ते 10 दिन के अंदर ही सूद की ये रकम $1.5 लाख तक पहुंच जाती है। पिंडी के मोहम्मद मसूद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो मकान का किराया और बच्चों की फीस जमा कराना चाहते थे। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि मसूद अपने गेट के बाहर मालिक मकान से बात कर रहा था। आपको पता भी है कि मेरा काम सारा इस किराए से चलता है। मुझे पता है, बस मुझे 8-10 दिन दे दें, मैं दे दूंगा आपका किराया। यार देखो भाई, नाराज नहीं होना। आप ऐसा करो कि आप कहीं और बंदोबस्त कर लो यार। सिर्फ कहाँ जाऊंगा मैं कह रहा हूँ ना, मैं 8-10 दिन में दे दूंगा आपका किराया। ठीक है, ये आखिरी वायदा होगा। और देखो अगर मेरी कोई बात का बुरा लगा हो ना तो यार नाराज नहीं होना, ठीक है। पिंडी के रहायशी मोहम्मद मसूद एक कंपनी में मामूली मुलाजमत करते थे, लेकिन अचानक उनकी नौकरी खत्म हो गई और वो 6 महीने से बेरोजगार थे। मकान के किराए और बच्चों के स्कूल की फीस का मसला मसूद को अंदर से घुन की तरह खाए जा रहा था। शब्बीर ने यह भी देखा कि मसूद मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था कि अचानक स्क्रीन पर कर्ज देने वाली एप्लीकेशन के इश्तिहारात आने लगे। मसूद ने फौरन एप्लीकेशन डाउनलोड की और मांगी गई मालूमात फराहम करके 13,000 रुपए के कर्ज की दरखास्त दे दी। शब्बीर ने देखा कि दरखास्त देते ही मसूद के फोन पर एक कॉल आई। हेलो मसूद साहब, बहुत मुबारक हो आपको। आपका लोन अप्रूव हो गया है और पैसे आपके अकाउंट में बहुत जल्द ट्रांसफर किए जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताइएगा कि इसका सूद कितना होगा? अरे बहुत मामूली है, ऐसी परेशानी की कोई बात नहीं है। अच्छा चलें ठीक है। जनाब आपके खादिम हैं और मजीद लोन की जरूरत हो तो हम हर वक्त हाजिर हैं। ठीक है सर? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अल्लाह हाफिज। 13,000 का लोन मिलते ही मसूद की जान में जान आई और उसने कुछ पैसे मालिक के मकान को दे दिए और मजीद देने का वादा कर लिया। उधर लोन लेने के 1 हफ्ते बाद ही लोन की वापसी के लिए फोन आने लगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया आपने तो। किसकी कॉल है? दिखाओ।
हेलो मसूद साहब, 9,000 रुपये जमा कराने हैं आपने, और परसों आखिरी तारीख है। और अगर आपने ये रकम नहीं जमा करवाई तो ये रकम डबल हो जाएगी। क्या? ये क्या कह रहे हैं? अरे भाई, आपने तो कहा था कि 13,000 के लोन पे 15,000 रुपये चुकाने हैं, और वो भी किस्तों में। नहीं जनाब, आप एक दफ़ा एग्रीमेंट देख लें, कल तक का वक्त है आपके पास। मैं आपको फिर फोन करता हूँ। अच्छा, हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? खैरियत तो है? इतना परेशान नजर आ रहे हैं आप, इतने पसीने, सब खैरियत? अरे वो जिनसे लोन लिया था ना, उनका फोन आया था, ये लोन गले की हड्डी बन गया है मेरे। कह रहे कल तक लोन नहीं चुकाया तो डबल हो जाएंगे। खैर तुम परेशान नहीं हो, एक और एप्लीकेशन है, वो भी लोन देती है, मैं उससे बात करता हूँ। अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। चलो बेटा। शब्बीर ने देखा कि मसूद इंतहाई परेशानी के आलम में दूसरी ऐप इस्तेमाल कर रहा था। फिर उसके सामने स्क्रीन पर कर्ज मंजूर होने का नोटिस आ गया। नोटिस देखते ही मसूद ने फौरन बैंक का रुख किया। मसूद ने एक दूसरी एप्लीकेशन के जरिए कर्ज लेकर पहली कंपनी का कर्ज उतार दिया, लेकिन अब वो एक और सख्त तरीन जाल में फंस चुके थे। एक हफ्ते में 1 लाख पर 7 लाख का सूद चढ़ चुका था और कंपनी वाले मसूद को बरहाना गालियां और धमकियां दे रहे थे। शब्बीर ने देखा कि कंपनी के नुमाइंदे की कॉल आ रही थी और मसूद फोन नहीं उठा रहा। क्या हुआ है आपको? क्यों परेशान बैठे हैं आप? कंपनी वालों का फोन आ रहा है, अंदर फोन करके धमकियां दे रहे हैं। अगर कल तक पैसे नहीं लौटाए ना तो मुझे ही उठा के ले जाएंगे। आप फोन आए ना तो आप मुझे दे दीजिएगा, मैं बात करूंगी। हेलो, कौन सा बात कर रहे हैं? ये मसूद साहब से बात करनी है। किस सिलसिले में बात करनी है आपको? आपको नहीं पता कि मैं किस सिलसिले में फोन कर रहा हूँ? आपके शोहर 7 लाख रुपए हड़प कर चुके हैं। उनसे बोलें कि फोन उठा लें, मैं शाम को फिर दोबारा फोन करूंगा, वरना उनको उठा लिया जाएगा। खवातीन से बात करने की आपको तमीज नहीं है? शर्म आनी चाहिए आपको। दोबारा आपने फोन किया ना तो पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी मैं आपकी। पुलिस की धमकी मत दें आप हमें। अपने शोहर को बोले कि 3 दिन का वक्त है, आप हमारे पैसे जमा करवा दें। ठीक है, मैं कह दूंगी। मसूद की बीवी ने कॉल काट दी थी और अपने शौहर की तरफ देखते हुए तकरीबन नीम बेहोश होकर गिर पड़ी। क्या हो गया तुमको? बैठो इधर। अरे होश में आओ। पूरा बेटा पानी लेकर आओ। बेटी दौड़कर पानी ले आई और मसूद अपनी बीवी को होश में लाने की कोशिश करता दिखाई दिया। फंस गया हूं मैं। अरे कैसे निकलूंगा इस मुश्किल से? 2 बच्चों का बाप 42 साला मसूद पर लोन देने वाली कंपनियों ने धौंस धमकी और नंगी नंगी गालियों के जरिए मसूद का दिमाग ही मफलूज कर दिया। मुबैना तौर पर उनका डेटा लीक करने की धमकी दी गई। बेइज्जती और धमकियों के खौफ से मसूद ने एक दिन खामोशी से अपने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। धोखेबाजी से सादा लोग जरूरतमंदों को आसान लोन का लालच देकर हर तरह से लूटने वाली कंपनियों ने सोशल मीडिया पर जो एप्लीकेशंस बनाई हैं, उसका एक शिकार मसूद भी है, जो अपनी जान की बाजी हार गया। मसूद के बच्चे यतीम और बेआसरा हो चुके हैं और ये कंपनियां अब भी गुंडागर्दी से पास नहीं आ रही हैं। 1,20,000 उन्होंने लोन लिया, जिसकी मद में अभी 6 लाख रुपया वो दे बैठे हैं। तो उसके बावजूद भी अभी उन्होंने 8 लाख रुपया बनाया हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने ज़हनी अजियत की वजह से उन्होंने खुदकुशी की है। ठीक है, मेरी हुकूमत से अपील है कि इन कंपनियों के खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए। एक जाने कि सारा बच्चा तो चला गया, लोगों ने बच्चे ने बचाया, ऐसे जालमों को असल ये इंसाफ मिलना चाहिए कि सारे बच्चे तक कुछ किसी को जिन लोगों ने बच्चे न करो। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा लोन अदा करने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। वो लोन हम लोग मुसलसल अदा करते रहे, 7-8 लाख तक हम लोग लोन अदा कर चुके थे, लेकिन वो हमें ब्लैकमेल करते रहे कि इस टाइम तक आपकी जो है ना अमाउंट इतनी बढ़ चुकी थी।
अगर आपने रात 12 बजे तक हमें अमाउंट अदा नहीं की तो आपकी अमाउंट इससे डबल हो जाएगी। इसी टेंशन और परेशानी में मेरे हस्बैंड ने बहुत ज्यादा लोन उठा लिया उन लोगों से, जिससे मेरे हस्बैंड की बर्दाश्त हो के कल रात को उन्होंने अपने आप को खत्म कर दिया। मसूद के भाई ने पुलिस में कंपनी के खिलाफ दरखास्त दायर कर रखी है। शब्बीर का कहना है कि धोखाधड़ी से लोगों को कर्जों के जाल में फंसाने वाली कंपनियों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए और मसूद को गालियां और धमकियां देकर खुदकुशी पर मजबूर करने वाली कंपनी के मुतल्लिका मुलाजमीन को फौरन गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि धोखाधड़ी से लोगों को कर्जों के जाल में फंसाने वाली कंपनियों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाए और मसूद को गालियां और धमकियां देकर खुदकुशी पर मजबूर करने वाली कंपनी के मुताल्लिका मुलाजिमीन को गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा दी जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। कहते हैं कि हसद एक ऐसा शर है जो घर के घर फूंक देता है। मडरांजा में शब्बीर ने एक सगे मामू को अपनी भांजी से हसद करते देखा है। तफसील शब्बीर की ज़बानी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सुहेल और शाहीन का कॉलेज के गेट से बाहर निकलने से पहले आमना सामना हो गया। तो तुमसे तो ज्यादा ही आए होंगे। लाओ दिखाओ फिर। पहले तो अच्छा लो चेक कर लो। दोनों के हाथ में बीए के रिजल्ट थे। अरे वाह, तकरीबन सेम ही है। चलो फाइनल, हमारा ग्रेजुएशन तो कंप्लीट हुआ। और आगे का क्या इरादा है, कर लो या फिर बस? बस क्यों, अभी तो सिर्फ ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद एमए, फिर कोई जॉब, फिर कुछ और। मेरा ख्याल है कुछ और पहले कर लेते हैं। फजूल की बातें मत करो। और सुनो, अब तुमने भी आगे पढ़ना है। ओके बॉस, अब चले। इंसान की मेहनत ना एक दिन जरूर रंग लाती है। ये तो है यार। और किसने सोचा था कि खेती मजदूरी करने वालों के बच्चे इतनी आला तालीम हासिल कर लेंगे। अरे वो मामू शौकत की बेटी का सुनाओ, क्या बना उसका? उसका क्या होना है, पिछले 3 सालों से इंटर में फेल हो रही है, और क्या। पता नहीं यार उसका पढ़ाई में क्यों नहीं दिल लगता। खैर जो भी हो, शादी तो उसकी हो ही जाएगी कहीं ना कहीं। क्यों, उसको सिर्फ ख्वाब के पैर लगे हुए हैं। बताओ, मत मानो यार तुम, लेकिन प्यारी वो बहुत है। तो कर लो ना तो शादी। हमारे इतने अच्छे नसीब कहाँ। चलो खुलवाती हूँ तुम्हारे नसीब सारे, करवाती हूँ उससे शादी। शाहीन और सुहेल मोटरसाइकिल पर बैठकर घर रवाना हो गए। शाहीन और सुहेल आपस में कजन थे, पढ़ने में तेज थे, एक ही कॉलेज के तालिबे इल्म थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। ग्रेजुएशन के बाद सुहेल और शाहीन की मंगनी कर दी गई, जिस पर शाहीन का सगा मामू खफा हो गया क्योंकि वो अपनी बेटी से सुहेल का रिश्ता करना चाहता था। शब्बीर ने देखा कि शाहीन का मामू किसी गहरी सोच में था कि उसकी बीवी ने उसे टोका। मियाँ जी, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। मुझे तो पहले ही पता था, आपकी भांजी ना बहुत चालाक लड़की है, दिखने में कैसी मासूम और शरीफ लगती है। अरे गुस्सा तो मुझे भी बहुत है। वो क्या समझते हैं, उनकी बेटी की हमारी बेटी से ज्यादा खूबसूरत है, जो हमारी बहनों साहब को नजर नहीं आती। और देखने में हमारे बहनों साहब कैसे देहाती और सीधे बने रहते हैं, और अपनी बेटी को कितनी खुली छूट दे रखी है उन्होंने। खैर जाने भी दीजिए, जो हुआ सो हुआ। अरे कैसे जाने दूं, मैं अपने बहनों साहब को समझाऊंगा कि सुहेल से उनकी बेटी का रिश्ता मुनासिब नहीं है। गज़ब खुदा का, ऐसा मत कीजिएगा। अजीब बातें कर रही हो, अपनी बेटी को देखा है तुमने? जब से सुहेल से मंगनी का सुना है उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ रखा है। अरे क्या मैं अपनी बेटी को तड़पता हुआ छोड़ दूं? मैं उसे समझा लूंगी। अगर आप भाई साहब से बात करेंगे तो वो तो यही समझेंगे ना कि हम लोग जल गए और हमारी बेटी को कौन सी रिश्तों की कमी है। दफा करें, आप चाय लें। उधर शाहीन और सुहेल मंगनी के बाद न सिर्फ बहुत खुश थे, बल्कि दोनों मिलजुल कर जल्द अज जल्द मजीद तालीम हासिल करना चाहते थे ताकि कोई अच्छी सी नौकरी हासिल कर सके। शब्बीर ने देखा कि शाहीन घर में थी तो उसका बाप थका हारा घर आ गया। शाहीन दौड़कर बाप के पास पहुंच गई। बहुत थके हुए लग रहे हैं। ये ले
ठंडी ठंडी लस्सी पिए। जीता रहे मेरा बच्चा। भाई माशाल्लाह लस्सी तो बहुत अच्छी बनाई है मेरी बेटी ने। अरे बेटा वो तुम्हारा आखिरी इम्तिहान था उसका क्या हुआ? अब्बा कल ही तो नतीजा आया है और मैंने ग्रेजुएशन कर लिया। वाह गुड। और सुहेल का भी? हाँ, हम दोनों की पढ़ाई मुकम्मल हो गई। चलो ये तो अच्छी बात है। अरे वो तुम्हारी माँ नहीं दिख रही बेटा? अम्मा ये नहीं। अरे मैं कहाँ जाऊंगी शाहीन के अब्बा। जाओ शाहीन एक कप चाय चिप्स बना के लाओ अब्बा के लिए, ठीक है? अभी लाती हो। और सुनाई करती हूँ। हाँ अल्लाह का शुक्र है। भाई अब शादी की तैयारी करनी है भाई। हाँ बिल्कुल। वैसे मुझे लग रहा है कि शौकत भाई और भाभी ये इस रिश्ते से जो है खुश नहीं है। हाँ ये तो तुमने मेरे दिल की बात कही, मुझे भी ऐसा लग रहा है उनके रवैये से। लेकिन शायद शौकत भाई के दिमाग में अपनी बेटी की शादी करने का सुहेल से। चले भाई अब क्या कर सकते हैं। अरे सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान नहीं हो। अच्छा जरा मैं सुहेल के यहाँ जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। हाँ जल्दी आई, बस अभी जल्दी आई। शाहीन और सुहेल की मंगनी की तकरीब में बहुत से मेहमान आए थे, लेकिन एक मेहमान बहुत खास था और वो था जमींदार, जिसके यहाँ शाहीन का बाप काम करता था। जमींदार ने शाहीन को एक कीमती तोहफा दिया था और ये तोहफा अभी तक शाहीन के मामू के दिल में कांटे की तरह खटक रहा था। शाहीन का मामू और उसकी ममानी आपस में बातें कर रहे थे। तुम्हें पता है जमींदार ने शाहीन को क्या तोहफा दिया था? हाँ, कोई सोने का सेट दिया था। क्यों? भाई पता नहीं, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है। भला कौन देता है अपने मुलाजिम की बेटी को इतना कीमती सेट? अरे तो क्या हो गया, पैसे वाले लोगों ने दे दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो इन पैसे वालों की नीयत ठीक नहीं लग रही। क्या मतलब? क्या वो? हाँ, इनकी दाल गली नहीं। आपका तो हो गया दिमाग खराब। अरे जमींदार की नीयत खराब है, मगर आपकी भांजी तो पढ़ी लिखी समझदार लड़की है और उसकी तो मंगनी भी हो चुकी है। तो सुहेल कोई पागल नहीं है। आप बिना पता नहीं क्या क्या ऑल फॉल सोचते रहते हैं। खैर तुम मानो या ना मानो, मुझे तो ये रिश्ता ज्यादा अरसे चलता हुआ नजर नहीं आ रहा और निकाह तक तो शायद बात पहुंचे भी ना। अल्लाह ना करे, कैसी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। खैर तुम देख लेना, मेरी छठी तो यही कह रही है। और मेरी छठी कह रही है कि आपका दिमाग खराब हो गया है। शाहीन और उसके कजन सुहेल की शादी में कुछ ही दिन रह गए थे कि एक बड़ा वाकया पेश आ गया। शाहीन को किसी ने घर में घुसकर गोली मार दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत वाक़ हो गई थी। शाहीन के मामू ने दावा किया कि वो इस कत्ल का ऐनी शाहिद था और ये कत्ल जमींदार ने किया था। पुलिस ने जमींदार को शाहीन के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तफ्तीश के नतीजे में जमींदार बेगुनाह साबित हुआ और शाहीन का सगा मामू अपनी भांजी के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अपने जुर्म का एतराफ भी कर लिया। ये है मकतूला का सगा मामू, जिसने हसद की आग में जलते हुए अपनी ही भांजी की जान ले ली थी। तेरी कत्ल हुई क्यों लग रही थी तेरी? हाँ जी, किਵੇਂ कत्ल की है? बेटी तो आया जी घर के यहाँ करो पिस्टल लेके डेरे से पहुंचे, डेरे से जाकर कत्ल की थी। अगर टेंशन की हो जाती है फिर की तो पैगाम देने तमाम मतलब की करना चाहिए? बस एक नई गलती हो गई है, नई जुर्म करना चाहिए। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में कुछ इस तरह बताया। दूसरी में जो बात हमारे सामने ये थी कि ये लड़की जो थी ये भी एक स्टूडेंट थी और जिसके साथ इसका निकाह 6-7 साल कबल हुआ था उसका खालादार भाई सुहेल था, वो भी एक स्टूडेंट था। तो उन्होंने रुख्सती इसलिए नहीं की थी अल्लाह बख्श ने कि दोनों तालीम मुकम्मल कर लें, उसके बाद हम बाकायदा रुख्सती कर देंगे और अपनी ये मेहनत पूरी की इस केस में। तो हम किसी जगह पे एक आदमी के पहुंचे, वो आदमी ये शौकत था। ये है मकतूला के लवाहिकीन। और तुझे की चाहते हो पूरी सलाह मिलनी चाहिए? पूरी सलाह मिलनी चाहिए। जिस वक्त तुम गवाह सी मुकदमे विच फिर कोई ने महसूस होया कि नहीं महसूस कराया। और ये है एक मेहनत कश की लायक फायक बेटी, जिसे हसद और दुश्मनी में कत्ल कर दिया गया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहां हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे
नई कहानियों के साथ इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।